ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے اپنے نیک باس کی بہن سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ ایک پردہ دار لڑکی تھی اور اس کی یہی بات مجھے اچھی لگی، تو میں نے ڈرتے ڈرتے باس سے اس کا ہاتھ مانگ لیا اور حیرت انگیز طور پر باس مان بھی گیا۔ لیکن حیرت تب ہوئی جب باس کی بیوی نے اشارے سے مجھے بلایا اور کہا، رات مجھے ملنے آنا، اپنی نند کی ایسی چیز دوں گی کہ تم ان بہن بھائیوں کی حقیقت جان جاؤ گے۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا، لیکن پھر بھی میں اس سے ملنے چلا گیا، اور جب حیرت کا پہاڑ تو تب ٹوٹا اور سر جھک گیا جب اس نے مجھے اپنی نند کی 3 ابدال کا تعلق ایک گاؤں سے تھا۔ وہ والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور وہ بھی ان کے بڑھاپے کی اولاد تھا۔ اسی وجہ سے اس کے لڑکپن میں ہی اس کے والدین وفات پا چکے تھے اور وہ اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کے چچا اور تایا کے گھر قریب قریب تھے اور وہ اکثر اسے کبھی کھانا پانی بھیج دیا کرتے تھے۔ اس کے باپ کی جو زمین تھی وہ اس کے باپ نے ٹھیکے پر دی ہوئی تھی، اس سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ وہ اپنے کپڑے بھی خود ہی دھوتا تھا۔ ماں نے ایک واشنگ مشین رکھی ہوئی تھی، وہ اتوار کو وہ کپڑے دھوتا، پھر ان سب کو استری کرتا۔ اس کے پاس BA کی ڈگری تھی جو اس نے گاؤں کے کالج میں ہی رہ کر حاصل کی تھی۔ اس کے ایک کلاس فیلو کی شہر میں شادی تھی جو گاؤں سے شفٹ ہو کر شہر چلا گیا تھا۔ اس نے اسے شادی پر شہر بلایا تھا اور وہ اس کی شادی میں شرکت کے لیے بیگ بنا رہا تھا کہ اس کے چچا اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ اس کے گھر آئے۔ چھوٹی بیٹی نے چائے کا کپ اٹھا رکھا تھا۔ چچا نے اسے بیگ بناتے دیکھ کر پوچھا، کیوں برخوردار، کدھر کی تیاری ہے؟ تو اس نے کہا، چاچا میں اپنے دوست کی شادی میں شرکت کے لیے شہر جا رہا ہوں، گھر کا ذرا دھیان رکھنا، میں وہاں زیادہ دن بھی رک سکتا ہوں کیونکہ میں نے شہر میں جا کر نوکری بھی ڈھونڈنی ہے، اس زمینوں کے پیسے سے گزر بسر مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ چاچا سر ہلا کر بولا، ٹھیک ہے پتر، خیر سے جا اور خیر سے واپس آ۔ وہ چائے پینے لگا تو چاچا بیٹی سے بولا، جا میری چائے بھی ادھر ہی لے آ۔ وہ اچھا کہہ کر چلی گئی۔ ابدال کا چاچا سامنے بچھی چارپائی پر بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا، جبکہ ابدال کو شہر جانے کی جلدی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وقت پر وہاں پہنچ جائے۔ انجان شہر ہے، بہت کم اس کا وہاں جانا ہوا تھا، اس کو تو راستے بھی یاد نہ تھے۔ چاچے نے چائے کا گھونٹ اونچی آواز میں بھرتے ہوئے کہا، پتر تیری پھپھی آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ تجھے سمجھاؤں، اس کی بیٹی کے رشتے آ رہے ہیں۔ ابدال بولا، تو کر دے نا۔ چاچا پھر ایک چائے کا لمبا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، او پتر، وہ تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتی ہے۔ ابدال نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، چاچا آپ تو جانتے ہیں کہ خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتا، ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں کتنی مثالیں موجود ہیں، کتنے بچے خاندان میں شادی کرنے کی وجہ سے معذور پیدا ہوئے ہیں، تو پھر میں رسک کیوں لوں اور پھر خاندان میں ناراضگی الگ سے مولوں۔ چھوٹی چچی بھی آ گئی، اس نے چائے پیتے ہوئے کہا، السلام علیکم چاچی۔ وہ بولی، وعلیکم السلام، مجھے ابھی گڈی بتا رہی تھی کہ جب میں چائے دینے گئی تو بھیا کہیں جا رہا تھا، خیریت ہے نا؟ یوں اچانک تم نے بتایا ہی نہیں۔ وہ صفائی دیتے ہوئے بولا، بس چاچی میں بیگ بنا کر بتانے ہی آنے والا تھا، وہ شہر میں دوست کی شادی ہے۔ اس نے پوری تفصیل بتائی اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ گڈی بھی چلتی پھرتی خبر نامہ ہے، اس سے پہلے کہ ابھی میں سب کو تفصیل بتاتا رہوں، جلدی سے نکلوں ورنہ گڈی کی معرفت جو بھی سنے گا کنفرم کرنے بھاگے آئے گا۔ اس نے جلدی سے بیگ اٹھایا اور بازو پر بندی گھڑی پر وقت دیکھا اور بولا، مجھے سخت دیر ہو رہی ہے، اور بائک سٹارٹ کرنے لگا تو چاچی چاچے سے سرگوشی میں پوچھنے لگی کہ وہ اپنی بہن کی بات اسے بتا دی، وہی اس کی بیٹی کے رشتے والی۔ چاچا بولا، بتا تو دی ہے پر وہ ہمیشہ کی طرح انکاری ہے، لگتا ہے کہ کبھی نہیں مانے گا، اور میری بہن مفت میں آس لگائے بیٹھی بیٹی کو بوڑھا کر دے گی، ابھی جو اچھے رشتے آ رہے ہیں ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ ابدال راستے میں سوچتا گیا کہ بہتر ہے کچھ عرصے کے لیے شہر میں ہی رہ جاؤں، ورنہ کسی دن خاندان والے زبردستی اس کی اپنی کسی بیٹی سے شادی کروا کے دم لیں گے، اور وہ اس وقت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ تایا الگ زور مار رہے تھے کہ ان کی بیٹی سے شادی کروں، بڑے چاچا الگ اور پپھی الگ، صرف چھوٹے چاچا رہ گئے ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں۔ اس کا ویسے بھی کسی شہری لڑکی سے شادی کرنے اور شہر میں ہمیشہ رہنے کا پروگرام تھا۔ اسے اپنے رشتہ داروں کی سیاست سے سخت الجھن ہوتی تھی، ہر کوئی دوسرے کی ٹو میں لگا رہتا تھا۔ وہ سوچتا کہ سب اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے، دوسروں کی طرف ہر وقت ان کا دھیان کیوں لگا رہتا ہے۔ گاؤں کی زندگی میں پرائیویسی نام سے کوئی واقف ہی نہ تھا، جس وقت جس کا بھی دل چاہتا اور جب چاہتا منہ اٹھائے اس کے گھر پہنچ جاتا۔ یہ بھی نہ سوچتا کہ کوئی سو رہا ہوگا، کسی نے کہیں جانا ہوگا، چاہے کھانے کا وقت ہی کیوں نہ ہو تو ان کو جا کر کہنا، جی میں کھانا گھر سے کھا کر آیا ہوں۔ اب میزبان بیچارے مروت میں ہمارے ساتھ بھی تھوڑا سا چکھ لے، اور موصوف چکھتے چکھتے خوب پیٹ بھر لیتے تھے۔ وہ سویا ہوتا تو رشتہ دار زور سے اسے لتاڑتے، اوے دن چڑھے سو رہا ہے، نحوست پھیلا رہا ہے، اٹھ جا۔ گڈی گرم گرم ناشتہ لائی،
ठंडा हो जाएगा। चाचा तब तक शोर मचाते रहते जब तक वो उठ न जाता। जब वो वक्त देखता तो 7:45 बज रहे होते। तेरी चाची कह रही थी इसे जगाकर गरम गरम खाना खिला, ठंडा हो जाएगा तो स्वाद नहीं रहता। वो दिल में उन्हें कोसता कि गरम गरम नाश्ता करने के अजर में उसकी नींद का मज़ा जो ख़राब करते हैं, इसका क्या करे। जब तक उसके माँ बाप जिंदा थे अम्मा उसे चाचा को जगाने न देती थी। कहती थी कि रात को देर तक पढ़ाई करता रहा है, चाहे वो लैपटॉप खोले इंग्लिश सीजन ही देख रहा हो, जिनका उसे बहुत शौक था। वो कानों में हेडफोन लगाकर सुनता था। अब्बा सब जानते थे मगर उसका पर्दा रखते थे। अम्मा को कहते पुत्र पढ़ रहा है। वो हैरान होकर कहती कि ये कैसी पढ़ाई है जो किताबों से नहीं टीवी से पढ़ी जाती है। उसको अपनी भोली माँ याद आ गई तो दिल दुख से भर गया। उनके मरने के बाद उसकी ज़िंदगी मसाइल से भर गई थी। पहले कोई उससे कुछ नहीं कह सकता था, अब सभी आकर उस पर धौंस जमाते थे। चाचा का घर साथ जुड़ा हुआ था और उनके घर की दीवार भी छोटी थी। चाचा दीवार के दूसरी तरफ से भी उसको आवाज़ लगा लेता था। वो सहन की कुंडी लगाकर सोता तो उसका चाचा अपनी छोटी बेटी को दीवार पर चढ़ाकर उससे नीचे छलांग लगाने का कहता, जो वैसे भी छलांग लगाने में माहिर थे। वो फुर्ती से नीचे छलांग लगाकर अंदर से सहन की कुंडी खोल देती और चाचा दंदनाता हुआ शोर मचाता उसके सर पर खड़ा होकर उसके मुंह से चादर हटाता और उसे बाजू से झंझोड़कर उसे जगाता कि उठ जा, गरम गरम नाश्ता बन रहा है। तो उठकर तैयार होने में भी नाश्ता ठंडा कर देता है। तेरी चाची को और मुझे तब तक चैन नहीं आता जब तक तू नाश्ता गरम गरम खा न ले। वो सोचता कि जो उसका चैन बर्बाद करते हैं इसका क्या। चाची कभी आ जाती और कहती, पुत्र तेरा घर बहुत गंदा हो रहा है, अभी गुड्डी को भेजकर झाड़ू लगवाती हूँ। उसे फिक्र लग जाती कि गुड्डी उसके लैपटॉप को कभी छेड़ती है और कभी उसके हेडफोन कानों में लगाकर खुश होती है, कभी उसका मोबाइल उठाकर कहती है भैया इसमें गेम कैसे खेलते हैं। गर्ज वो इसकी आदतों से तंग पड़ता कि हर चीज़ की इंस्पेक्शन करना वो अपना फ़र्ज समझती थी। काम कम और हर चीज़ के जायजे ज़्यादा लेती थी, इसलिए वो इससे काम करवाने से जान छुड़ाता रहता था। उसे काम खुद करना मंजूर होता मगर गुड्डी से करवाना उसको महंगा पड़ता। वो इसके हेडफोन को छेड़छाड़ के ख़राब भी कर चुकी थी और वो कोई खाने पीने की चीज़ ला कर रखता कि अगर रात देर तक जागने से भूख लगे तो वो खा लेगा, मगर गुड्डी उसकी रखी हुई चीज़ों को कहीं ना कहीं से ढूंढी निकालती थी। फिर वो अपने अब्बा के सामने उससे पूछती कि अब्बा क्या मैं ये चीज़ खा लूँ। तो अब्बा कहता मुझसे क्या पूछती है, जिसकी चीज़ है उससे पूछ। तो वो बड़े प्रेम से पूछती भाई मैं ये चीज़ खा लूँ। वो चाचा की तरफ देखता तो वो भी खामोश होता। आखिर उसे कहना पड़ता कि खा लो। वो फुर्ती से चीज़ उठाती और खुश होती, खाती खाती लौट जाती। अगर चाची साथ होती तो वो इसकी रखी हुई चीज़ें माँ के सामने पूछती तो चाचे को कभी ख्याल आ जाता कि ना पुत्र ये भाई की है, रख दे। तो चाची झट कहती भाई की चीज़ है इसीलिए तो पूछ रही है खाने को, वरना पराए लोगों के घर जाकर थोड़ी मांगती है। और वो माँ की शय पर फौरन चीज़ें उठाती और भाग जाती, उसे इजाज़त लेना भी ज़रूरी ना समझती। पीछे से चाची उसे चला कर कहती ये लड़की गुड्डी सुन, अपने छोटे भाई को भी देना। अब्दाल अंदर से गुस्से से खोल कर रह जाता। इसके सहन में जामन का दरख्त लगा हुआ था। गुड्डी हर वक्त इस जामन के दरख्त के पीछे पड़ी रहती और जामन तोड़ती रहती। फिर इसके सहन में दरख्त से बंधे झूले पर गुड्डी हर वक्त झूला झूलती रहती। कभी अपनी सहेलियों को ले आती और शोर मचाती, उनके साथ अंदर बाहर भागती रहती। वो डांटता कि अपने घर जाकर खेलो तो वो चीख चीख कर रोती हुई माँ को शिकायत लगाती। माँ फौरन उसका मुकदमा लेके उसके पास पहुँच जाती और कहती अब्दाल पुत्र चल अपनी बहन को अब चुप करा, ये तेरे साथ रूठी हुई है, तूने इससे लाड ना किया तो ये तुझसे नाराज़ हो जाएगी और फिर इधर नहीं आएगी। अपने बाप की तरह बड़ी ज़िद्दी है, फिर तो अपनी छोटी बहन को कैसे अपने घर बुलाएगा। उसे मजबूरन मरवत में उसे रोती हुई रूठी गुड्डी को प्यार से मनाना पड़ता तो वो झट आइसक्रीम खाने की फरमाइश कर देती और उसे उसकी फरमाइश पूरी करनी पड़ती। फिर चाची उसे कहती देख गुड्डी तेरा अब्दाल भाई कितना अच्छा है, इसके पास पहले ही पैसों की कमी होती है। फिर ऊपर से चाचा चाची के गुड्डी के बेजा लाड से वो अंदर से गुस्से से खोल जाता और वो उससे कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि सबके नज़दीक उसके छोटे चाचा का घर था और वही उसे 3 वक्त का खाना पीना पहुंचाते थे, जिससे उसका 3 वक्त खाने पीने की पैसों की बचत हो रही थी। वरना वो शायद 3 वक्त फाके कर रहा होता क्योंकि उसका अपना ज़ाती खर्च भी होता था। बाइक पे पेट्रोल डलवाना भी कभी उससे दोबर लगता था। ऊपर से गुड्डी की शरारतें, उसे वो कुछ कह भी नहीं सकता था कि वो बहुत इशू बनाती थी। उसे डांटे पर चाचा चाची उसे मना तो ना करते थे, बल्कि उसके सामने उसे यही कहते थे कि चल पुत्र कोई बात नहीं, तेरा बड़ा भाई है, तुझे डांट सकता है। मगर फिर उससे मनाने का जो वो खर्चा डाल देती थी। एक दिन उसका सर दर्द कर रहा था कि गुड्डी कमरे में आई और पूछने लगी कि भाई क्या हुआ। उसने कदरे भरमे से कहा सर में दर्द है। ये सुनते ही वो तेल की शीशी लेकर आ गई और बोली लाओ भाई आपके सर की मालिश कर देती हूँ।
वो नाना करता रहा मगर वो ना मानी और काफ़ी सारा तेल उसके सर में उंडेल दिया और उसके सर की मालिश करने लगी। पहले तो अब्दाल को बहुत गुस्सा आया, मगर तेल के सर में डालने से और गुड्डी के नन्हे नन्हे हाथों से मालिश करने से उसे काफ़ी सुकून मिलने लगा। उसने उसे सबक सिखाने के लिए कहा कि जब तक ये सारा तेल सर में जज़ब नहीं होता मालिश करती रहो। वो काफ़ी देर मालिश करती रही और काफ़ी तेल सर में जज़ब हो गया। इतने में उसकी चच्ची आ गई और अब्दाल को भी एहसास हो गया कि वो थक गई होगी। पहले तो इसके सर में तेल डालने से सर दर्द ही भूल चुका था, फिर उसे काफ़ी सुकून मिलने लगा। तो चच्ची को देखते ही अब्दाल बोला, गुड्डी अब बस भी कर दो, कितना मालिश करोगी। ये सुनते ही गुड्डी ने मालिश बस कर दी। चच्ची बोली, मैं देखने आई थी, गुड्डी काफ़ी देर हो गई है, किधर चली गई है। ये सुनकर अब्दाल को दिल में शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसकी माँ क्या सोचेगी, मेरी बेटी को इतनी देर मालिश करा के थका दिया होगा। मगर चच्ची उसे बोली, अब भाई के पाँव की भी मालिश कर दे, मैं इसे अभी सब्ज़ पत्ती का कहवा बना कर देती हूँ, इसको लगता है गला भी ख़राब है। ला गुड्डी, मुझे तेल पकड़ा, मैं इसका पहले गला मलूं, देखना इसका ज़ुकाम कैसे ठीक होता है। तेल मलने से गला नरम हो जाता है और बुखार भी उतर जाता है। इसके नाना करने के बावजूद गुड्डी उसके पाँव की मालिश करने लगी और चच्ची उसके गले की। इतने में चाचा भी आ गए और चाचा का बड़ा बेटा भी आ गया और बोला, अम्मा भूख लगी है, रोटी पका दे। चचा ने परेशान होकर पूछा, क्या बात है बच्चे। चाची बोली, जुकाम हुआ है इसे। बेटे को डांटते हुए बोली, देख नहीं रहा भाई की तबीयत खराब है, सब्र कर, अभी आती हूँ। चचा ने बीवी से कहा, इसे कहवा बना दे। वो बोली, अभी बनाती हूँ, पहले इसका गला तो नरम कर लूँ। देखें कैसे अंदर साइडों पर गिलट बने हुए हैं। चाचा ने कहा, एहतियात से मलना, दरमियान से जोर ना लगाना, आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथों से, खुराक की नाली ना दबा देना। वो बोली, जी मुझे पता है, एहतियात से नरम हाथों से मल रही हूँ। चाची ने वाकई उसका गला नरम कर दिया कि पहले उसे थूक नहीं निकला जा रहा था। उसने देखा गुड्डी अभी तक उसके पाँव की मालिश कर रही थी। उसे शर्म आ गई कि नन्ही बच्ची कितनी थक गई होगी। वो काफ़ी बेहतर महसूस करने लगा। चाची उठकर कहवा जल्दी से बना कर ले आई। अब्दाल सारे रास्ते गांव की बातें याद करता रहा। गुड्डी उसके साथ कपड़े धुलाने में मदद करती रहती थी। उससे अच्छा नहीं लगता था चाची को कपड़े देना, क्योंकि वो देखता था वो हर वक्त काम में लगी रहती हैं। वो जब भी कभी मशीन लगाती थी तो उसके जो भी मैले कपड़े हों वो उठा कर ले जाती थी और गुड्डी से उसके सेहन में रोज़ झाड़ू लगवाती थी, क्योंकि जामुन के दरख्त की वजह से बहुत गंद पड़ा रहता था। वो घर खुला ही छोड़ कर आया था। उसे मुनासिब नहीं लगा कि वो घर को ताला लगा कर जाए। सबसे ज़्यादा ये घराना उसके साथ बेलौस होकर खिदमत करता था, जबकि दूसरे ताया, चाचा और पुप्पी इनकी बेटियों का रिश्ता न करने पर उसे खींचे खींचे और नाला रहने लगे। उससे मिलते ज़रूर, उसको जो कभी घर में अच्छा पकता वो भेजते, मगर कभी कभार। जबकि गुड्डी के अब्बा, जो सब बहन भाइयों में सबसे छोटे थे, 3 वक्त का ताज़ा खाना अपने खर्चे से उसे पहुंचाते, शाम की चाय देना भी न भूलते। अब्दाल को दोस्त का घर ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि वो काफ़ी पहले ही एक बार उसके घर गया था। अब उसे वो घर मिल नहीं रहा था। उसे भूख भी ज़ोरों की लगी हुई थी और मोबाइल में बैलेंस भी ख़त्म था। उसने सोचा था कि शहर से जाकर डलवा लेगा, मगर उसे कोई बैलेंस लोड करवाने वाला कोई ऐसी शॉप नज़र नहीं आ रही थी। एक शॉप से उसने सोचा कि एक जूस ही पी लूँ, कुछ एनर्जी तो मिले। वो एक सामने वाली शॉप पर गया और जूस लिया और वहीं खड़े होकर पीने लगा कि एक गाड़ी वाला आकर रुका। उसने भी जूस लिया और पर्स से 5,000 का नोट निकाल कर दुकानदार को दिया। दुकानदार ने कहा, जनाब मेरे पास चेंज नहीं है। तो अब्दाल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इनके पैसे दे देता हूँ। अब्दाल ने उसके जूस के भी पैसे दिए। इस आदमी ने इसका बहुत शुक्रिया अदा किया और उससे पूछने लगा कि आपने किधर जाना है। तो अब्दाल ने उसे सारी तफसील बताई। तो वो बोला, वैसे भी आज मेहंदी का फंक्शन है और आप बता रहे हो कि वो घर पर ही होगी, तो सवाए दुल्हे के आप वहाँ किसी को जानते नहीं, और वैसे भी इसके सारे रिश्तेदार आए होंगे, आप बोर हो जाओगे। अगर बुरा न मनाओ तो आज मेरे घर रुक जाओ। इस आदमी ने उसके बटवे में काफ़ी कम पैसे देख लिए थे और सोच रहा था कि इतने कम पैसे होने के बावजूद उसका दिल कितना खुला है। अब्दाल ने कुछ पसो पेश के बाद कहा, ठीक है चलें, एक रात के लिए रुक जाता हूँ, क्योंकि मैंने बैलेंस भी लोड करवाना है ताकि दोस्त को कॉल करके रास्ता पूछ सकूँ। रास्ते में कोई शॉप आई तो बताइएगा, मैं बैलेंस लोड करवा लूँगा। इतने में उसे चाचा की कॉल आ गई। तो उसने कहा, चाचा मैं दोस्त के घर खैर खैरियत से पहुँच गया हूँ, आप परेशान मत होना, मैं इधर बहुत मसरूफ़ हूँ और उसके घर सिग्नल भी नहीं आते और मैं उसके साथ घर में काफ़ी दूर आया हुआ हूँ तो सिग्नल मिले। अब आप कॉल ना करना, क्योंकि ऐसा लगेगा कि बेल जा रही है और मैं उठा नहीं रहा और आप परेशान होते रहेंगे। मैं हफ्ते बाद आपको खुद फ़ोन करूँगा। चाची को सलाम कहना और गुड्डी को प्यार करना। चाचा बोला, ले तेरी चाची तुझसे बात करना चाहती है। अब्दाल ने देखा वो शख्स उसका खड़ा इंतज़ार कर रहा है, तो उसने उसे 2 मिनट का इशारा किया और चाची से बोला, चाची मेरा मोबाइल बंद होने वाला है, बैटरी कम है, मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करना। मगर वो इसको वक्त पर खाना खाना वगैरह की हदायत करने लगी।
तो उसने जल्दी से उसे खुदा हाफिज कह के फ़ोन बंद कर दिया। पीछे से गुड्डी की जिद करने की आवाज़ें आ रही थी कि मैंने भी बात करनी है। अब्दाल ने उस शख्स से माजरत की तो वो बोला, बहुत लकी हो जो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी इतनी फ़िक्र करते हैं। वो अपना नंबर मुझे दे दो और मेरे पीछे बाइक पर आते जाओ। जब वो इस शख्स के घर पहुंचा तो इसके घर के बाहर इसाक हाउस लिखा हुआ था। काफ़ी खूबसूरत और बड़ा घर था। वो काफ़ी मुतासिर हुआ। उसको ऊपर वाले पोर्शन में एक शानदार सजा सजाया कमरा दे दिया गया। उसने मोबाइल देखा तो इसमें 1000 का बैलेंस आया हुआ था। इसके पास टोटल 2000 थे। वो परेशान हो गया, मगर जब उसने खाने पर अपने बीवी, बेटे और बेटी और बहन से मिलवाया तो उसकी बेटी देखकर उसे गुड्डी की याद आ गई। उसने इसाक साहब को बैलेंस का 1000 रुपया देना चाहा तो वो बोले, अरे यार, तुमने हमारी मेहमान नवाजी कबूल की, अपने दोस्त की मेहंदी छोड़ी तो फिर इतना तो हमारा हक बनता ही है। बच्चे उससे जल्द मानूस हो गए। वो इसकी बेटी से बहुत प्यार करने लगा तो इसाक साहब की बीवी ने बच्चों का इसे मामू बना दिया। उसने पूछा, तुम्हारी कोई बहन है? तो वो बोला, थोड़ी देर पहले तक नहीं थी, अब मिल गई है, जिनका मैं मामू हूँ। इसाक साहब की बीवी बहुत खुश हुई और बोली, मेरा भी कोई भाई ना था, आज से तुम मेरे भाई हो। इसाक साहब ने कहा कि यार, ये मामू बनकर तुम मेरे साले बन गए हो। ये मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ। मैं अच्छी खासी साले के बगैर सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहा था। तुम न जाने कहाँ से साले बनकर टपक पड़े। अब तुम 2 और 2 11 बन जाओगे। मैं बेचारा बीच में मारा जाऊँगा। इसकी बीवी बोली, मेरे भाई को कुछ मत कहना। बच्चे भी बोले, हम रात को मामू से स्टोरी सुनेंगे। अब्दाल बोला, ज़रूर। उसने देखा इसाक साहब की बहन खाना डालकर अपने रूम में चली गई थी। इसने बच्चों को अपने गांव की गुड्डी की फ़नी बातें सुनाई तो बच्चे बहुत हंसे और उन्होंने कहा कि हमने गुड्डी से मिलना है। माँ ने आकर उन्हें जल्दी सोने की ताकीद की कि सुबह स्कूल जाना है। वो कहानी सुनते सुनते सो गए तो इसाक साहब की बीवी उसे बुलाने आई कि इसाक साहब बुला रहे हैं, चाय बनाई है, आ जाओ। वो बादल नख्वास्ता उठा और जब इधर लाउंज पे पहुंचा तो उनकी बहन हयात मौजूद न थी। देर तक इसाक साहब और उनकी बीवी उससे इसके मुतल्लिक पूछते रहे। उसने सब सच बता दिया कि वो गांव में पला बड़ा है और अब शहर में नौकरी करने का इरादा रखता है। तो झट इसाक साहब ने उसे अपने पास कैशियर की जॉब ऑफर कर दी और तनख्वाह भी बीवी के इसरार पर ज़्यादा रखी कि अब ये मेरा भाई है और रहने के लिए अभी उसे फ़िलहाल अपने पास ही जगह दी कि इसके बीवी बच्चे उसे कहीं जाने नहीं दे रहे थे और कल से ही नौकरी शुरू करने की ऑफ़र कर दी। बच्चे उसे शादी पर भी न जाने दे रहे थे। इसका दिल भी टूट गया। जब उसने 2 बार अपने दोस्त को कॉल की तो उसने रिसीव न की। इसाक साहब की मॉल में बहुत बड़ी कपड़ों की शॉप थी और उन्हें वहाँ कैश पर किसी ईमानदार आदमी की ज़रूरत थी। वो उसे बॉस बुलाने लगा। बच्चे उसकी जान न छोड़ते और उनकी माँ उसे छोटे भाई की तरह ख्याल रखती। इसाक साहब को बहन के रिश्ते की फिक्र थी। वो इसके आगे जिक्र कर चुके थे। इब्दाल ने झिझकते हुए अपने रिश्ते की बात बॉस से की तो वो फ़ौरन मान गया और रिश्ता पक्का कर लिया। वो बोला, मुझे इसकी शादी जल्दी करनी है, तुम किसी किस्म की फ़िक्र न करना, सारा खर्च मैं करूँगा। वैसे भी अब तुम्हारा गांव में कौन है? वालदैन फोत हो चुके हैं, बहन भाई कोई है नहीं, इसलिए तुम अब हमारे साथ इसी घर में रहोगे। अब्दाल ने कहा, बॉस, मेरा भले कोई और ना हो मगर मेरे चाचा चाची मेरे लिए वालदैन का दर्जा रखते हैं और मैं वलीमा अपने गाँव में करना चाहता हूँ और आप मुझे लोन दे दें और मेरी सैलरी से काटते रहें। बॉस की बीवी ने भी उसकी हमायत की कि बच्चा ठीक कह रहा है, वो अपने ददियाल को तो इस खुशी के मौके पर शामिल करना चाहेगा। अब्दाल ने कहा कि मैं चाचा और चाची को भेजकर आपसे बाकायदा रिश्ता मांगने की रस्म करना चाहता हूँ ताकि उनको ये न लगे कि उसने हमें बड़ा नहीं समझा और इतना बड़ा फैसला अकेले कर लिया। बॉस की बीवी ने भी शौहर को समझाया कि ये ज़रूरी है, वो कोई लावारिस नहीं है। तब बॉस ने उन्हें बुलवाने की हामी भर दी तो बॉस की बीवी ने कहा, अब्दाल, गाड़ी ले जा, उन्हें खुद ले आ, वो किधर लोकल ख्वार होते रहेंगे। बच्चे खुशी से बोले, क्या गुड्डी भी आएगी? बॉस ने उसे एक तनख्वाह एडवांस में दे दी तो वो अपने चाचा की फैमिली के लिए रेडीमेड कपड़े खरीद कर लाया और गुड्डी के लिए बर्तनों का सेट और बच्चे के लिए पिस्टल लाया। साथ बॉस के बच्चों के लिए भी उनके ज़रा महंगे खिलौने लेकर आया तो वो बहुत खुश हुए। उसने गांव जाने का अचानक फ़ैसला किया। जब वो रात के वक्त अचानक गांव पहुंचा तो अमूमन सब जल्दी सो जाते थे। जब रात 10 बजे वो अपने घर पहुंचा तो गुड्डी सो रही थी। एकदम ख्वाब से जाकर बोली, भाई आया है। चाचा चाची सोने वाले थे। चाची ने उससे प्यार से कहा, सोनी, अभी वो इस वक्त कैसे आ सकता है? मगर जब अब्दाल ने चाचा को फ़ोन किया कि घर आया हूँ तो सब खुशी से पागलों की तरह उठ गए, नंगे पांव दरवाजे पर आए। वो इनके दरवाजे पर ही खड़ा था। वो सब उसे दौड़कर ऐसे मिले जैसे सदियों से बिछड़े हुए हों। गुड्डी तो इसके साथ ऐसे चिमटी कि उसे छोड़ नहीं रही थी। उसने उसे गोद में उठाकर बहुत सा प्यार किया, फिर बच्चे को भी किया। उसे चाची ने बहुत प्यार से मुँह चूमा। चाचा इतनी देर उसे गले लगाए रखा। उसे भी सबसे मिलकर एक सुकून मिल रहा था। उसने चाचा के घर गाड़ी अंदर की क्योंकि उनका गेट बहुत बड़ा था और सुजुकी पिकअप चाचा ने रखी हुई थी। जब उसने बच्चों को खिलौने दिए तो बच्चे बहुत खुश हुए।
चाची ने पहले खाने का पूछा तो उसने बताया कि वो खाना खा कर आया है, मगर चाची फिर भी उसे दूध का ग्लास देना ना भूली जो रोज उसे सोने से पहले देती थी। इसने इनको कपड़े दिए और सारे रिश्ते की बात बताई तो इसके चाचा ने कहा, बेटा अच्छा किया जो बाहर से रिश्ता कर लिया, वरना सारे खानदान में मुकाबलाबाजी हो जाती और खानदान वाले आपस में नाराज हो जाते। इसकी चाची कपड़े देखकर खुशी से दुआएं देने लगी और पिस्ते बादाम वाला गुड़ लाकर मुबारकबाद देकर सबका उससे मुंह मीठा करवाया और बोली, कल मैं हलवा पकाकर सबका मुंह मीठा करवाऊंगी। अब्दाल ने कहा, नहीं चाची, सुबह नाश्ते के बाद निकलना है, फिर रात को वापस आप लोगों को छोड़ने भी आना है। चाचा ने अब्दाल से कहा कि पुत्र, वलीमे के पैसे अपने बॉस से मत लेना, मैंने एक गाय बेची थी, उसके पैसे मेरे पास मौजूद हैं और दुल्हन के वलीमे के जोड़े भी हम लेंगे और उसे सोने का सेट भी डालेंगे और इसके घर वालों को भी जोड़े देंगे। हमारे गांव में कपड़े की नई दुकान खुली है, उसके पास अच्छे जोड़े भी हैं। तुझे बॉस का एहसान लेने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ गांव से तेरी बारात धूमधाम से जाएगी। अब्दाल ने बड़ी मुश्किल से चाचा को समझाया कि वहाँ मैं किसी को नहीं लेकर जा सकता, सिर्फ आपको रिश्ता लेने के लिए लेकर जा रहा हूँ। इन पर बारात का बोझ डालना नहीं चाहता और आप मेरे ऊपर अपनी जमा पूंजी क्यों लगा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए रखें। चाची उसे कमर पर थप्पड़ मारकर बोली, तू हमारा सबसे पहला और बड़ा बेटा है, अब ऐसी बात दोबारा मत करना। चाचा ने भी उसे डांट कर यही कहा। वो जब सबको लेकर शहर पहुंचा तो चाची ने जब उस सब के जोड़े उनको दिए जो अच्छे थे तो वो काफ़ी हैरान हुए। बच्चे आपस में बहुत घुल मिल गए। इब्दाल बच्चों को अच्छी तरह समझा कर लाया था कि उनकी कोई चीज़ नहीं छेड़नी, ना तोड़नी है, ना मांगनी है। चाची से हयात बहुत इज्जत से मिली। चाची ने उसे देखते ही कहा, यह तो बहुत नेक और बापर्दा लड़की है, हम समझे थे कि कोई फैशनेबल लड़की होगी। बॉस भी उनसे मिलकर मुतासिर हुआ जब वो लोग मिठाई के टोकरे और जोड़ों के साथ आए और चाचा ने बॉस से कहा कि वलीमा हम गांव में खुद करेंगे और बच्ची के वलीमे के जोड़े और जेवर भी हम लेंगे। मगर बॉस ने जेवर से मना कर दिया कि मैंने पहले ही इसके 10 सेट बनवा कर रखे हुए हैं। बॉस खुश हो गया कि काफ़ी गैरतमंद ख़ानदान है। बॉस की बीवी को चाची बहुत अच्छी लगी जो ऐसे मिल गई थी जैसे अपनी हो। बच्चे उन्हें जाने न दे रहे थे। बॉस की बीवी ने इन सबका खलूस देखकर जल्दी से शौहर को कहकर बच्चों के लिए खिलौने और बड़ों के कपड़े मंगवा लिए। गुड्डी सबको बहुत पसंद आई। गांव में आकर चाचा ने सबके घरों में लड्डू भिजवाए और बताया कि फलां दिन वलीमा होगा। चाचा ने कहा, हम लोकल चले जाएंगे, गांव वाली बसें वाले वाकिफ़ हैं। रिश्ते के बाद बॉस की बीवी ने अब्दाल से कहा, रात को मेरे पास आना, मैं तुम्हें नन की एक चीज़ दूंगी, फिर तुम्हें इन बहन भाई की हकीकत पता चल जाएगी। वो मौका लगाकर उसके पीछे छत पर गया तो वहाँ पर एक कमरा बना हुआ था। जब उसने कमरे में कदम रखा तो उसके पांव तले से ज़मीन सिरक गई। वो ऐसा कमरा था जिसे किसी पीर फकीर का होता है। उसकी बीवी ने बताया कि मेरा शौहर जायचों पे यकीन रखता है। मेरी नंद के 3 अच्छे रिश्ते महज इसलिए छोड़े कि इनका सितारा नहीं मिल रहा था और तुम्हारा चूंकि सितारा दिल्लू था इसलिए फ़ौरन हाँ कर दी। मेरे शौहर का ये शौक़ है कि चिल्ले काटना वगैरह। मेरी नंद भी उसका इन बातों में साथ देती है और वो भी चिल्ले काटती है। चूँकि वालदैन और बहन भाई इस काम को पसंद नहीं करते थे इसलिए उसने खुफिया ये काम शुरू कर दिया। अब्दाल ने कहा, ठीक है, मैं एहतियात करूँगा। बॉस की बीवी बोली, प्लीज़ शादी के बाद तुम नंद को समझाना ये तोहम परस्ती गुनाह है और मेरे शौहर को भी समझाने की कोशिश करना कि तुम्हारा संजोग इधर लिखा हुआ था और अगर सितारे मिल रहे हैं तो ये महज इत्तफाक है। अब्दाल ने वादा किया कि आपको बहन कहा है तो बहनोई को राह रास्त पर ला कर रहूँगा। वो खुश हो गई। सब रिश्तेदार कुछ नाराज़ हुए मगर फिर जोश में शादी की तैयारियों में लग गए। ढोलक हफ्ते पहले रख दी गई। इब्दाल 2 दिन पहले थोड़ी देर के लिए गाँव आया और उसकी धूमधाम से मेहंदी की गई। वो वालदैन की कब्र पर जाकर रोता रहा। गुड्डी नाच नाच कर न थकती थी। जब वो बॉस की गाड़ी में इन सबके समेत सुबह वलीमे के दिन गांव पहुंचा तो वलीमा अगले दिन रखा गया। अब्दाल के कमरे में चाचा ने नया फर्नीचर रखवाकर उसका कमरा सजा दिया था। मेहमानों के लिए उनके ताया के घर कमरा दिया गया क्योंकि उनका घर नया बना था और अटैच बाथ साथ था। सब बॉस की फैमिली को बहुत इज्जत दे रहे थे और वो हैरान हो रहा था कि काफ़ी यंग लड़कों ने 3 पीस सूट पहने हुए थे और वलीमे में भी काफ़ी डिशेस रखी गई और खाना काफ़ी खुला पकाया गया था और पार्लर वाली घर आकर दुल्हन को तैयार करके गई थी और बहुत अच्छा शहरी तर्ज पर तैयार किया था कि बॉस की बीवी ने भी उससे अपना मेकअप करवा लिया। गुड्डी तो बॉस के बच्चों को लिए लिए फिर रही थी और वो भी बहुत खुश थे। वलीमे से अगले दिन फजर के बाद इब्दाल ने बीवी से कहा कि आओ तुम्हें गाँव की सुबह दिखाता हूँ। वो जब बाहर आए तो चाची लकड़ियों वाले चूल्हे पर नाश्ते की तैयारी कर रही थी। दुल्हन को इसने प्यार किया तो वो बोली, ये सब लोग बहुत अच्छे हैं, हम हर वीकेंड इधर ही गुजारा करेंगे। मेरा असल घर तो ये है, मैं इसे सजाऊंगी संवारूंगी। तो वो इसे प्यार से देखते हुए बोला, मेरे दिल ने ऐसे ही नहीं तुम्हें पहले दिन ही देखते ही पसंद कर लिया था। वो शर्मा गई। इतने में उसके भाई भाभी भी जल्दी जाग कर आ गए। सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था। वो लहलहाते खेतों में से गुजरते
بہت سکون محسوس کر رہے تھے۔ عبدال بولا، گاؤں میں اتنی خوبصورت صبح ہوتی ہے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اتنے میں گڈی دوڑ کر آئی اور دلہن سے لپٹ گئی۔ اس نے بھی اسے پیار کیا تو دلہن بولی، یہ میرا دل گاؤں میں لگائے رکھے گی، یہ ننھی سی میری دوست ہے۔ عبدال نے خوش ہو کر گڈی کو اٹھا کر پیار کرتے ہوئے کہا، آج بھائی کو بھول گئی، پارٹی بدل لی۔ وہ مسکراتی رہی۔ باس بولا، یار میرا تو دل نہیں کر رہا واپس جانے کا۔ گڈی نے بچوں کا پوچھا تو باس نے بتایا کہ وہ ابھی سو رہے ہیں۔ گڈی کو یاد آیا کہ وہ تو ناشتے کے لیے ان سب کو بلانے آئی تھی۔ سب چاچا کے گھر ناشتے پر پہنچے تو چاچی کڑک پراٹھے پکا رہی تھی اور رشتہ دار لڑکیاں صحن میں کھڑی انہیں ایک کمرے میں لے گئیں جہاں کرسیاں پڑی تھیں اور ان پر خوبصورت کڑھائی والے کور چڑھے ہوئے تھے۔ پیچھے ایک لمبی سی کارنرز پر برتن رکھے ہوئے تھے اور اس پر بھی کڑھائی والا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ برتن ایک دوسرے کے اوپر ترتیب سے رکھے گئے تھے۔ میز پر بھی کڑھائی والا کپڑا پڑا تھا۔ شیشے کے جگ، گلاسوں میں کنویں کا ٹھنڈا پانی پڑا تھا۔ مکھن اور انڈے، پراٹھے اور چائے اور گھر کا اچار بھی موجود تھا۔ سب نے بہت خوش ہو کر مزے سے ناشتہ کیا۔ دلہن نے بھائی سے کہا کہ میں جب بھی چھٹی ہوگی اپنے گھر وقت گزاروں گی اور ابھی لسٹ بنا کر لے جاؤں گی اور پھر وہ سامان ضرورت کا یہاں لے کر آؤں گی اور اپنے گھر میں رہوں گی۔ میرا اصل گھر یہ ہے، میں ساس سسر کی قبروں پر بھی جاؤں گی۔ اس کے بھائی نے کہا، بہن جہاں تم اور جیسے تم خوش رہو کرو، مجھے تمہاری خوشی سے مطلب ہے، بلکہ ہم بھی چھٹی ادھر ہی گزاریں گے۔ اگر بزنس کا مسئلہ اور بچوں کی پڑھائی کا چکر نہ ہوتا میں تو ادھر ہی گھر بنا لیتا۔ جب وہ سب لوگ جانے لگے تو گڈی رونے لگی کہ مت جاؤ، تو دلہن نے تجویز دی کہ کیوں نہ ہم گڈی اور اس کے بھائی کو بھی شہر لے جائیں اور ان کو ادھر ہی بھائی کے بچوں کے ساتھ اسکول داخل کروا دیں۔ چاچا بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر تعلیم کا سارا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا۔ چاچی نے بھی کہا، جب ہماری بہو ان کا بھلا سوچ رہی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے۔ عبدال نے کہا کہ یہ تو اردو میڈیم اسکول کے بچے ہیں، انگلش میڈیم اسکول میں کیسے داخلے ملیں گے؟ تو حیات ایک جذبے سے بولی کہ میں ان پر دن رات محنت کروں گی، یہ بہت ذہین بچے ہیں، امید ہے جلد سیکھ جائیں گے۔ حیات نے واقعی اپنا وعدہ نبھایا اور ان کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ اب اس کے بھائی کے بچوں کے ساتھ اسکول جاتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔